General of Sisters of Our Lady of Providence. DSA Mr. Arvind Kumar Pathak, Sister Sheila, President of our school, Sister CG, the Principal of our school, Sister Rosie, the Manager, Sister Minnie, the Headmistress, Sister Lata, in charge of the study center, all the fathers, sisters, dear parents, teachers, guardians, press people, supportive staff, and young creative minds. It gives us immense pleasure and joy to welcome you all to this Tech Expo Science and Art exhibition today. We hope you will be entertained through the efforts made by all of us in the form of skits, working and 3D models and experiments based on the theme of universal growth. All the more, it is a matter of great pride for all of us that our renowned school has completed 40 great years of its establishment, and we are glad to have among us the founder principal of our school, Sister Meera, whose selfless dedication and efforts have made the school reach on this great platform. She has cherished the school from the beginning to this massive campus. Sister, we won't forget your contributions. But before the program commences, let us all bow to the Almighty, with whose blessings we have gathered here to celebrate this occasion. Now, I request the choir for the prayer songs.
अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, मुझ पर करो विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। Thank you, choir, for the prayer song. Light the lamp of love in your hearts, the lamp of abundance in your home, the lamp of compassion, the lamp of knowledge to dispel the darkness of ignorance, the lamp of gratitude that the divine has bestowed on us. To solemnize the special occasion, I would like to request Right Reverend Dr. Eugene Joseph, Sister Meera, Mr. Arvind Kumar Pathak, Sister Sheila, Kalpana teacher, Sister Siji, Amrita teacher, Vinita teacher, and Arkin, the head boy, to light the lamp.
Thank you, everyone. India is a land of tradition and ancient wisdom. This is remarkably reflected in all the art forms. On this note, I would like to invite our dance artists for the welcome dance. चरण कमल
Arkin Mishra, on behalf of our St. Joseph's family, welcome you for the Tech Expo, Science and Art Exhibition set on the theme Universal Development for Everyone, Everywhere. On 5th of July 2022, the St. Joseph's Convent School gracefully completed 40 years of its visionary growth. I thank God for always being with us. On this special occasion, I warmly welcome our Honorable Chief Guest, Right Reverend Dr. Eugene Joseph, Bishop of Diocese of Varanasi, for his benign presence. He has played a key role in many major achievements of the diocese. Being a profound educator himself, he has been principal of several schools and he works on the motto for evangelization through diversity. Dear Bishop, your presence has truly enriched this event. It brings me immense pleasure to welcome Sister Meera, the founding principal of our institution and Mother General of Sisters of Our Lady of Providence. Sister, you have always focused on value-based education that has shaped lives of innumerable students and brought the school to the very epitome of educational standards it has now. It is a pleasure to welcome Mr. Arvind Kumar Pathak, BSA of Varanasi, for sparing his precious time to grace this occasion as guest of honor. Sir is actively involved in implementation of policies aimed at better education in our city. I feel privileged to welcome Sister Sheila, the President and former Principal of our institution. A hearty welcome to Sister Rosalie, the Manager, and Sister Siji, the Principal of our school. A warm welcome to Sister Minnie, the Headmistress, Sister Lata, the in charge of the Study Center, Father Rosalind Raja, the Parish Priest of Ishmata Mandir, all other fathers and sisters. I cordially acknowledge the presence of principal of different schools, parents and teachers, the press and media executives, the members of supportive staff, volunteers and other students who have joined us on this great occasion. Welcome everyone to our beloved institution. Hope this event will provide you all a life-enriching experience. Stop.
Thank you, choir, for this melody. अभिषेक, अभी तक तुम्हारा सजावट का काम खत्म नहीं हुआ? दादाजी, आपको यहाँ आने के लिए मना किया था ना, क्यों बाहर आए हैं? दादाजी वॉकिंग के लिए जा रहे हैं। दादाजी आप जाइए। मैं आज वॉकिंग के लिए नहीं जाऊंगा। तुम्हें रोज कुछ न कुछ बहाना वॉकिंग नहीं जाने के लिए मिल जाता है। आज का क्या बहाना है? क्या दादी, आज दादाजी का 70वां जन्मदिन मनाना है और वो वॉकिंग के लिए कैसे जाएंगे? मम्मी, मम्मी, दीदी, मम्मी कहाँ है? मम्मी अंदर बिरयानी बना रही हैं। तुम पहले जाओ और नहा कर तैयार हो जाओ। सोनू, तुम क्यों आते आते मम्मी को ढूंढते हो? सुबह मम्मी पापा से बता रही थी कि केक खरीदना है। तो क्या हुआ? कौन सा फ्लेवर का केक है देखना है। समाना कहाँ से कहाँ आ गया। जब मैं छोटा था, केक को केवल फिल्मों में देखता था और उतने से ही मुंह में पानी आता था। कभी केक खाने का मौका नहीं मिला। लेकिन अभी देखो, बच्चे केक का फ्लेवर पूछते हैं। दादाजी बस बस, आप फिर अपने जमाने की कहानी शुरू मत करिए। मैं नहाने जाता हूँ। ये आदमी इसी समय बाहर जाता है और पता नहीं कहाँ जाता है। कौन से आदमी को तुम ढूंढती हो? कौन सा आदमी हो सकता है? आपके प्यारे बेटे को ही मम्मी प्यार से आदमी कहती हैं। अच्छा, तुम ही तो उसे केक खरीदने भेजी थी। हाँ जी, वो गया शाम को 5 बजे। अभी तक पापा आ गए होंगे। आपका लेन देन इतना जल्दी खत्म हो गया? पापा, केक कौन से फ्लेवर का है? हे भगवान, मैं तो भूल ही गया। मम्मी, ये देखो आपके लाडे क्या करके आए हैं। जो खरीदने गए थे उसको भूल गए और बाकी सब लेकर आए हैं। अरे ठीक है, अभी शुरू मत करो। मैं भी जाता हूँ, केक लेकर आता हूँ। पापा आप मत जाइए, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी करो। लोगों के आने से पहले केक आ जाना चाहिए। बेटा, यह ऑनलाइन केक कैसे खरीदा जाता है? दादा, ये सब आपके जमाने का नहीं है। हाँ दादा, ऑनलाइन ऑर्डर का मतलब हम लोग घर पर बैठे बैठे कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। कुछ भी खरीद सकते हैं? हाँ जी, कुछ भी। तो रात को मुझे नींद नहीं आती है, क्या नींद मिल सकती है? दादाजी, आप क्या बोल रहे हैं? इसमें हंसने वाली बात क्या है? मैं तो सीरियस पूछ रहा हूँ। अभिषेक बता रहा था कि ऑनलाइन कुछ भी खरीदा जा सकता है। दादा, ये सब आपके जमाने का नहीं है, इसलिए आपको समझाना आसान नहीं है। कौन आया है? केक आया है दादाजी। क्या केक अपने से पैदल आया है क्या? कोई तो लाया होगा, उन्हें अंदर बुलाओ। आप अंदर आइए। बेटा, तुम कहाँ रहते हो? मैं पहाड़िया की तरफ रहता हूँ। कितने पैसे हुए? सर ये बिल है। सोनिया बेटी, इनको चाय पिलाओ। नहीं दादाजी, मैं चाय नहीं पीता हूँ। शर्माओ मत बेटा, इसे अपना ही घर समझो। नहीं दादी, मुझे और भी घर डिलीवरी के लिए जाना है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर ये मगरमच्छ के आंसू क्यों? ठीक है, आप ऐसा ही रख दीजिए। क्या हुआ माँ? मुझे सड़क को देखकर अपने दूसरे बेटे की याद आ गई। माँ, आप ये नाटक कब बंद करेंगी? तुम्हें ये नाटक लगता होगा, लेकिन मैंने उसे
हमने कोख से जन्म दिया है। लेकिन माँ, जब से वो अपने परिवार के साथ हम लोगों से अलग हुए, तब से एक बार भी आपसे या पापा से मिलने नहीं आए ना। वो कैसे आएगा? 10 साल पहले आप लोगों ने उसे घर से बाहर जाने के लिए कहा था ना। गुस्से में आकर मैंने कह दिया, इसका मतलब वो चला जाएगा। मैंने सुना है कि उसको एक बेटी भी है। माँ, आज ही के दिन आपको रोना है क्या? बेटा अभिषेक, वो केक टेबल पे लगाओ। 5 मिनट और रुको। क्यों रुकना है? और कोई आने वाला है क्या? नहीं, लेकिन इतना जल्दी क्यों? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दादाजी। बेटी, ये क्या है? पापा आपके लिए स्मार्टफोन खरीदे हैं। बेटा, मैं स्मार्टफोन से क्या करूंगा? मैं तो पुराने जमाने का आदमी हूँ। दादा, आप एक काम करिए, जब भी फोन कॉल आएगा आप फोन पे बात करना और बाकी समय मैं गेम खेलूंगा। पापा, आप किसी को भी अपना फोन छूने नहीं देना। आप लोग कौन हैं? हमारे घर पर क्यों आए हैं? बेटा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। बेटी का नाम क्या है? मेरा नाम अक्षरा है। आप कौन हैं? मैं आपकी दादी हूँ। तू इतने साल कहाँ थी? हम लोग विदेश में थे बेटी। वो कौन सा देश है? अक्षरा, बस। शालू बेटी, उसे पूछने दो। माँ, आप इसको नहीं जानती हैं। आप इसको उत्तर देते देते थक जाएंगी, लेकिन इसका प्रश्न पूछना खत्म नहीं होगा। पापा, आप अपने बेटे को बुलाए थे क्या? अंदर खाना पक रहा है, मैं जाती हूँ। पापा, मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। मोहन बेटा, तुम इस समय बाहर क्यों जा रहे हो? दोनों को जाने दो। चलो, हम केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है पापा, हम लोग चलते हैं। क्यों बेटा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? 10 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। बेटा, कुछ समय रहो, खाना खाओ, फिर आराम से चले जाना। नहीं माँ, हम लोगों का पेट आपके बड़े बेटे और बहू के स्वागत से ही भर गया है। मैं नहीं आऊंगी, आप लोग चले जाना। यहाँ मेरे साथ खेलने के लिए बहुत लोग हैं। हमारे घर में कोई नहीं है। आप लोग जाओ। अक्षरा, नीचे उतरो। पापा, इसीलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। हमें बुलाकर हमारा अपमान करके आप खुश हैं ना? दादा, जो अंकल आए थे वो सच में मेरे चाचा हैं? क्यों बेटा, तुम ऐसे क्यों पूछते हो? क्योंकि जब भी मैं हमारी कॉलोनी के पार्क में खेलने जाता हूँ, चाचा अक्षरा को लेकर खिलाने आते थे, लेकिन कभी भी मुझसे बात नहीं किया। तुम्हारे चाचा को कैसे पता होगा कि तुम उसके बड़े भाई के बेटे हो? पापा, आपने क्यों नहीं बताया कि मेरे बताने से तुम मान जाते? पापा, हम लोगों ने आप दोनों की देखभाल में क्या कमी रखा है? मैंने कब कहा कि तुम दोनों ने कुछ कमी रखा है? फिर क्यों आपने श्याम को हमारे घर बुलाए थे? बेटा, वो तुम्हारा छोटा भाई है। छोटा भाई है, इसीलिए पिछले 10 साल में इतना नजदीक रहने के बावजूद भी एक बार भी आप लोगों से मिलने नहीं आया। अच्छा हुआ नहीं आया, नहीं तो तुम दोनों अभी तक इस शहर को छोड़कर चले गए होते। जैसे अभी कुछ देर पहले आप दोनों 2 दिशा में भाग गए थे। देखिए पापा, आप कुछ भी बोलिए, मेरे लिए मेरा भाई 10 साल पहले ही मर गया था। दादाजी, आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं? मुझे क्या देखना आता है? मेरे लिए तो सब कुछ नया है। कल तो अरुणिमा आपको सिखा रही थी ना? वो बस नया नंबर सेव करना और मैसेज खोलना सिखाई थी। तब तक उसका वीडियो कॉल आया और वो चली गई।
ये कहाँ से गाना सुनाई दे रहा है? आपके मोबाइल से ही आ रहा है। जब से आपके हाथ में मोबाइल आया 1 मिनट भी नीचे नहीं रखा। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? ये कौन है? अरे ये तो मेरी बहन कनाडा से है। तुम ठीक हो? कितना अच्छा लगता है, मैं अपनी बहन को 10 साल के बाद देख रहा हूँ। आप ठीक है ना? लो भाभी से बात करो। हेलो, तुम ठीक हो ना? ये क्या हुआ? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओहो दादी, अपना चश्मा पहनिए तभी दिखेगा। अभी भी तो कुछ नहीं दिख रही है। हाँ दादी, डिस्कनेक्ट हो गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब? तुम मतलब समझाते समझाते थक जाओगे, मैं जाता हूँ। तुम बोलो बेटी बोलो। उसका मतलब फोन कनेक्शन कट जाना। फोन कनेक्शन मतलब? कौन से कनेक्शन के बारे में बात हो रही है? सोनू, फोन मुझे दे दो। दादी दादी, 5 मिनट में गेम खेलकर आपको वापस दूंगा। सोनू, फोन दादी को दे दो। अभी अभी पीटीएम में तुम्हारी टीचर ने शिकायत की है, तुम घर का काम ठीक से नहीं करते हो। हेलो, कौन? मैं प्रताप बोल रहा हूँ। अरे प्रताप, बोल क्या हुआ? हम लोगों के बैच गैदरिंग के लिए तुम आ रहे हो ना? जरूर। तो जल्दी तुम मेरे अकाउंट में 10,000 सेंड करो। ठीक है, अभी मैं सेंड कर रहा हूँ। बेटा, अगर बैंक जा रहे हो तो मेरा भी पासबुक अपडेट करा देना। किसने कहा कि मैं बैंक जा रहा हूँ? अभी तुमने अपने दोस्त से कहा ना कि 10,000 भेज रहा हूँ। उसके लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल से कर दूंगा। मोहन को पता चला तो वो हम दोनों को घर से बाहर ही कर देगा। आप मोहन से क्यों इतना डरते हैं? हेलो, कौन? सर, क्या मैं मोहन जी से बात कर रही हूँ? जी हाँ, बोलिए। हम कौन बनेगा करोड़पति से बात कर रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति? हमें नहीं पता। कृपया आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। बोलिए। आपके मोबाइल में एक मैसेज आया होगा। मसाज फोन में? वो क्या होता है? मसाज नहीं, मैसेज। हाँ बोलिए, क्या करना है? आपके फोन में एक मैसेज आया है, उसमें नंबर लिखा होगा, उसको बता दीजिए। 1 मिनट, फोन को होल्ड पर रखिए, अभी बता देती हूँ। हेलो, लिखिए 5 8 3 2 1। थैंक यू। मसाज सब तुमको कैसे पता है? मसाज नहीं, मैसेज है। आज ही सुबह अरुणिमा मुझे सिखाई थी। मेरे मोबाइल पे कॉल आया था। हाँ बेटा, कौन बनेगा करोड़पति से कॉल आया था। और मसाज में? मसाज नहीं बेटा, मैसेज में कुछ नंबर आया था, उसको मैंने बता दिया। ओह गॉड, क्या हुआ बेटा? अरे होना क्या है, मेरे अकाउंट से पैसे। क्या हुआ बेटा? कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? कुछ गलत नहीं हुआ। मम्मी, आप कुछ समय तक चुप बैठिए, मैं बैंक जाता हूँ। क्या हुआ बेटा? क्या होना बाकी है? मुझे उसी समय लग रहा था उस मसाज में कुछ गड़बड़ है। अरे वो मसाज नहीं है, मैसेज है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अरे बेटी अक्षरा, तुम कैसे आई? मुझे सोनू भैया पार्क में मिले और लेकर आए। सोनू, चाचा को पता है कि तुम अक्षरा को यहाँ लाए हो? चाचा तो ऑफिस गए हैं। तो चाची नहीं है घर पर? मम्मी घर पर है। मैंने कहा कि अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, बोलकर आई हूँ। ये लड़की हमारे घर क्यों आई है? कौन लाया है? तुम अपने घर जाओ। बड़े पापा, मैं कुछ समय सोनू भैया के साथ खेलने आई हूँ। तुम अपने घर जाकर खेलना। हमारे घर पर खेलने के लिए कोई नहीं है। तुमको क्या हुआ?
आते आते इस बच्ची के ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहे हो? आप कुछ मत बोलिए। क्या हुआ? तुम क्यों अभी चिल्ला रहे हो? आपकी बेवकूफी के कारण मेरा 50,000 उड़ गया। बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? जी हाँ, आपने किसी को नंबर बताया था ना? वो तो कौन बनेगा करोड़पति से बात कर रहे थे। कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा बेवकूफपति। आप कुछ समय तक अपना मुंह बंद करेंगे? मोहन, तुम्हें पता है ना कि तुम किससे बात कर रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है? बस तुम्हारी ही कमी थी। मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? 10 साल पहले झगड़ा किया, मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बच्चे आपस में बात नहीं कर सकते। पता नहीं हम लोग कितने दिन तक जीवित रहेंगे। क्यों ना हम लोग अपने आपसी मनमुटाव को भूलकर प्रेम से रहे। तुम्हारे पास दुनिया भर के लोगों से बात करने के लिए समय है, लेकिन अपने छोटे भाई को देखना भी नहीं चाहते हो। इन मासूम बच्चों का चेहरा तो देखो, इनके दिल में केवल प्रेम और स्नेह है, लेकिन तुम लोग उसे मिटाकर नफरत और घृणा भर रहे हो। तुम दोनों ने आधुनिक संचार माध्यम को अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीखा है, लेकिन साधारण मानव प्रेम और मूल्यों को सीखना भूल गए हो। हाँ, तुम्हारे पापा ने गलती से फोन का इस्तेमाल किया और तुम्हारा 50,000 चला गया, लेकिन इसके लिए तुम अपने पापा को इज्जत नहीं दोगे? हो सकता है हम लोग आपके समान आधुनिक समाज के नए नए उपकरणों को इस्तेमाल करना नहीं जान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप सबके गुलाम हैं। जो इंटरनेट कहकर हम लोग नाचते और झूमते हैं, वह सच में एक जाल है। ये जाल एक चक्रव्यूह के समान है। उस जाल को हमें सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो उस जाल के बाहर आना मुश्किल है। And what